application transferred, sorry, and excess adjusted. Okay. Now, third one, what do we have is first allotment due ka entry. Pashwa, can you tell me the next entry for allotment due? Equity share allotment to equity share capital That's it. to share premium account. हाँ, इसको खा मत जाओ, ऊपर मलाई मिल रही है यार. So equity share allotment to equity share capital account to share premium account. Okay. In this particular problem, the premium is lying with allotment. So equity share application to equity share capital to share premium. What will be the amounts, Pashwa, over here? Capital में कितना आएगा? Sorry, allotment में कितना आएगा पहले? 50 into 2000, मतलब 1 lakh. 20,000 into 50. That will be 1 lakh नहीं, 10 lakh. Then capital में कितना जाएगा? Will you transfer full 10 lakh to capital? No. Out of this 10 lakh, how much is towards capital and how much is towards premium? Check. How much is capital and how much is premium? Check, all of you. 30 capital, 20 premium. Exactly. So capital में कितना जाएगा इसमें से? 20,000 into 30. That should be 6 lakh rupees. 20,000 into 30, that will be 6 lakh rupees. That will go to capital. Okay. And what about premium? 20,000 into 20, 4 lakh rupees will go to your premium. 4 lakh rupees will go to your premium. Okay. तो capital के साथ ही चिपक के रहने वाला है ये. Remember that your premium will always lie in the due amount का entry. Okay, with capital. Keep that in mind. थर्ड एंट्री में है, अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो थर्ड एंट्री में, अगर एप्लीकेशन के साथ होता है तो सेकंड एंट्री में, ट्रांसफर्ड एंट्री. फर्स्ट कॉल में होता तो फिफ्थ एंट्री, सेकंड कॉल में होता तो सेवेंथ एंट्री, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ड्यू अमाउंट, premium will be always adjusted in due amount entry. Okay, so this is allotment due and premium adjusted. Okay, next one is receiving the allotment. Krish Doshi, can you tell me what entry you will pass for receiving allotment? Bank account, calls in arrears account to equity share allotment account. Very good. This one is very important over here. Question पढ़ो सब लोग ध्यान से. There was a defaulter. Okay, question में दिया हुआ है, there was a defaulter, Mr. A, holder of 150 shares, failed to pay the allotment and call money. Allotment and call money, ठीक है. तो allotment call money दोनों नहीं भरा है उसने. तो पहले तो bank calls in arrears, sorry, to equity share allotment account. Bank calls in arrears to equity share allotment account. How much you will show in allotment over here? How much you will show in allotment? 8 How much lakhs. are you expecting? 8 lakh rupees. Very good. Why 8 lakh? 10 lakh mein se already we have received 2 lakhs. So why we will receive that now? So 10 lakh minus 2 lakh will give us 8 lakh. 8 lakh will write in allotment. हमने इतना ही मांगा है क्योंकि हमें 10 लाख में से 2 लाख ऑलरेडी मिल चुका है. कंपनी को 2 लाख रुपए ऑलरेडी मिल चुका है, तो कंपनी हैज आस्क्ड ओनली फॉर 8 लाख रुपीस. बट अनफॉर्चुनेटली वो 8 लाख रुपए में भी एक डिफॉल्टर निकल आया, मिस्टर ए, जिसके पास कितने शेयर्स थे? हाउ मेनी शेयर्स वर देयर विद मिस्टर ए? 150 shares were there. So can we calculate the call in arrear directly? 150 into 50? 18,000. Sorry? 18,000. 18,000. सर मैं 2 मिनट में आता हूँ सर. Yeah. Sir, 150 into 120. 150 into 120. 150 into 50.
150 into 50. Is that correct? Ah, sorry, No, sorry, sir. 150 No, into sir. Why we can't do 150 into 50? सर प्रोरेटा अलॉटमेंट है तो उसको भी Pro-rata. एक्सेस हाँ, याद है प्रो रेटा अलॉटमेंट में जब भी अलॉटमेंट के वक्त कॉल्स इन अरियर्स होता है, वी मेक दिस नोट, वर्किंग नोट नंबर 2 कर दो इसको. दिस इज कॉल इन अरियर ऑफ मिस्टर ए. ये नोट बनाना ही पड़ेगा. क्यों बनाना पड़ेगा, कोई बता सकता है? why directly, why can't we do directly normally like we do 150 into 50? सर प्रोरेटा अलॉटमेंट है तो उसने भी ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा और उसके बाद उसको फिर 150 शेयर्स अलॉट हुए. तो इसका मतलब कंपनी के पास उसका, एप्लीकेशन मनी ज्यादा पड़ा है ऑलरेडी. हाँ, कंपनी के पास उसका एक्सेस पड़ा हुआ है. ओके, कंपनी के पास उसका एक्सेस पड़ा हुआ है. तो आइडियली ही इज नॉट सपोज टू पे 150 into 50, that is 7,500 on allotment. He is not supposed to pay 7,500. He is supposed to pay something less. He is supposed to pay something less. Are you understanding this point? Why he is supposed to pay something less? Because this guy has already paid something extra na, in application. The company will ask for lesser amount. Now our target is to find out that amount which is supposed to pay on allotment, and that amount itself is call in arrear because he is not paying that lesser amount. Okay, so let us find out how much this guy was supposed to pay on allotment. तो मिस्टर ए का पहले तो रेशियो निकालो एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट. एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट का रेशियो क्या होगा यहाँ पे? 24,000 को हमने 20,000 अलॉट किया है, इस भाई को 150 अलॉट हुआ है बिकॉज दिया हुआ है was holding 150 shares. was holding 150 मतलब उसको अलॉट 150 हुआ है. तो इसका अप्लाइड शेयर्स कितना होगा? कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा भाई ने? 180 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा. पहले ये बात समझ आई आपको? 180. 24,000 को 20,000 अलॉट हुआ है तो 150 को कितना अप्लाई किया होगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू गेट इट टू बी 180 शेयर्स. नाउ अगर उसने 180 शेयर्स अप्लाई किए हैं तो उसने एप्लीकेशन मनी कितना शेयर्स पे भरा होगा? 150 पे भरा होगा कि 180 पे भरा होगा? 180 पे भरा होगा. 180 शेयर्स पे भरा होगा. करेक्ट. तो 180 शेयर्स पे he has paid 50 रुपए के हिसाब से 9,000 rupees. Did you all get it? 180 पे भरा है उसने, 150 पे नहीं, 180 शेयर्स पे भरा और भाग गया. 180 into 50 becomes 9,000, whereas application required, इस बंदे से required application कितना था अपने को? How many shares were allotted to him? Only 150. तो इसका required application था only 150 into 50. That makes it 7,500. ओके, 9,000 रुपए इसने भर दिया, लेकिन इससे चाहिए था अपने को खाली 7,500 क्योंकि इसको मिले खाली 150 शेयर ही. तो 150 into 50 तो आपको मिलता है 1,500. दैट इज एक्सेस ऑन एप्लीकेशन. ये हमने पहले भी किया हुआ है, रिमेम्बर. ये एक्सेस ऑन एप्लीकेशन है आपका 1,500. अब अलॉटमेंट में कितना रिक्वायर्ड है? आइडियली देखा जाए तो रिक्वायर्ड अलॉटमेंट कितनी होगी इसकी? अगर समझो कुछ एक्सेस वैक्सेस नहीं होता तो कितना भरना चाहिए था इसको? एक्सेस वैक्सेस का लफड़ा नहीं होता तो कितना भरना होता है इसको? थिंक. 9,000. 9,000 नहीं, कैसा? 7,500. 150 into 50. ओके, 150 शेयर्स पर ही भरना है ना आगे का सब कुछ. उसको एप्लीकेशन भी 150 पे ही भरना था, उसने एक्स्ट्रा भर दिया. तो 7,500 भरना था अगर कोई एक्सेस नहीं होता तो. लेकिन एक्सेस है यहाँ पे, तो क्या कंपनी उससे 7,500 मंगवाएगा? विल द कंपनी आस्क हिम टू पे 7,500? नो. कंपनी विल टेल हिम कि भाई तेरा 1,500 रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है, तुझे 7,500 पे करने की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ 6,000 पे करना है. ये 6,000
वो पे नहीं कर रहा है, ये बन जाएगा उसका कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर। तो उस बंदे को एक्चुअली मिस्टर ए को 7,500 भरना ही नहीं था अलॉटमेंट पे, उसको खाली 6,000 रुपए भरने थे जो उसने नहीं भरे, तो उसका कॉल इन अरियर हो गया खाली 6,000 रुपीज। इज दिस क्लियर? तो शुरुआत में एप्लीकेशन रिसीव्ड में he has paid it on applied shares, बाद में रिक्वायर्ड में अलॉटेड शेयर्स पे ही चाहिए था तो एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस मिलने के बाद नॉर्मल अलॉटमेंट ढूंढ लो जो वो भरना, उसको भरना चाहिए था। इन केस देयर वाज नो एक्सेस, उसको 7,500 भरना चाहिए था, लेकिन 7,500 में से ऑलरेडी 1,500 पड़ा हुआ है, तो इज आइडियली सपोज टू पे ओनली 6,000 which is not paid at the time of allotment, so that 6,000 will become his call in arrears. Is that clear? That 6,000 rupees will become his call in arrears. Understood? Not 7,500 but 6,000 rupees. Okay, got it? So coming back to the entry, call in arrear में लिख दो 6,000 एंड बैंक में आपको मिलेगा 7,94,000। बैंक में आपको मिलेगा 7,94,000। ये लफड़ा क्यों हुआ, ये नोट क्यों बनाया मैंने? अब तक तो कोई सम में बीच में एक बार बनाया भी था, बाकी बीच में कोई सम में नहीं बनाया था, वापस बनाया नोट। Why am I making this note and why did we do it like this? प्रो रेटा में एक्सेस था अलॉटमेंट में। Is this clear? अलॉटमेंट में देयर वाज सम एक्सेस ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। ये खाली मिस्टर ए की बात नहीं है, मिस्टर ए के लिए नहीं किया है, कोई भी शेयर होल्डर होता जो अलॉटमेंट में डिफॉल्ट करता तो उसके लिए हमें ये नोट झक मार के बनाना ही पड़ता। क्यों बनाना पड़ता? क्योंकि उसका एक्सेस पैसा पड़ा हुआ था कंपनी में, ठीक है? तो उस बंदे को 7,500 नहीं भरना था, उस बंदे का कुछ एक्सेस पड़ा था, वो हटा के नेट अमाउंट भरना था जो उसने नहीं भरा। That is his call in arrear. 6,000 rupees is his call in arrear in this case. This is allotment received and CIA adjusted. ठीक है? Allotment received and CIA adjusted. में होता है तभी ना, बस प्रो रेटा में होता है तब भी करने का अलॉटमेंट, प्रो रेटा अलॉटमेंट। बाकी और कहीं पे ये नोट बनाने की जरूरत नहीं है तुमको, और ये लॉजिकल है ना, सोचो ना, दिमाग लगाओ। क्या उसका कॉल इन अरियर 7,500 है? सोचो, was he supposed to pay 7,500? Ask yourself. No, कि उसका एक्सेस पड़ा हुआ था एप्लीकेशन पे, was supposed to pay something lesser. That's why we made that note. Got it? एक्सेस है तो नोट बनेगा, एक्सेस नहीं है तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। Got it? फिफ्थ वाला देखो अभी, what will be the next entry? Entry number 5. Mokshit, can you tell me the fifth entry? Yes, sir. Equity share first and final call account debit to equity share capital account. बराबर है, equity share first and final call account debit to equity share capital account. How much? 20,000 into 20, 4 lakhs. 20,000 into 20, that will be 4 lakh rupees. ये तो आपका ड्यू अमाउंट है, मैं पूरा पैसा ट्रांसफर कर दूं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ओके, व्हाट अबाउट यशवी, द नेक्स्ट एंट्री? Bank call in arrears account to equity share final call account. Very good. Bank account debit, call in arrear account debit to equity share first and final call account. Can you tell me how much are you expecting in first and final call? How much you will write in first and final call? 4 lakhs. Very good. How much you will write in call in arrear now? 150 into 20. Why directly 150 into 20? Now is there any excess? No. No excess. सब खत्म हो गया excess allotment पे. Can you all see that? Allotment में सबका excess खत्म हो गया है, अभी कोई excess नहीं है, तो अभी कोई नोट वोट बनाने की जरूरत नहीं है, because everyone is supposed to pay 20 rupees on their respective shares. Got it? Excess कैसे था? allotment पे था, तुम थिएटर में गए, पिक्चर देखने गए, टिकट का पैसा था 200 रुपया,
टिकट का पैसा था 200 रुपया, तुमने बोला मैं 250 दे रहा हूं अभी, ओके 250 दे रहा हूं, 50 रुपया नेक्स्ट शो में एडजस्ट कर लेना। तो टिकट वाला तुम्हारा फ्रेंड था, तो उसने बोला ठीक है 250 लो और 50 रुपया नेक्स्ट शो में एडजस्ट करेंगे। तुमने 250 दे दिया, अभी नेक्स्ट बारी पिक्चर देखने गए, वापस टिकट 200 रुपया थी, विल यू गिव हिम 200 अगेन? नो, हाउ मच यू विल गिव हिम? 150. 150 रुपीज। तुमने ऑलरेडी 250 दिया हुआ है उसको, पहली बार पिक्चर देखने गए थे, अभी टिकट तो 200 रुपया ही है, तो पहली बार का पिक्चर हो गया, दूसरी बार पिक्चर देखने जाओगे तो 150 दोगे ना, इन ऑल तो तुमने 400 रुपया ही दिया है। अभी तीसरी बार पिक्चर देखने जाओगे और टिकट 200 रुपया है, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 150 की 200 की 250, कितना देना पड़ेगा? 200 ही देना पड़ेगा ना। तो यही यहाँ पर हो रहा है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन एक्स्ट्रा भरा था 250 भरा था, वो लोग ने अलॉटमेंट में कम भरा 150 रुपया भरा, लेकिन अभी सब एक्सेस खत्म हो चुका है। तीसरी बार जब आएंगे फर्स्ट कॉल भरने, तभी क्या बोलेगा कंपनी, आप सभी लोगों को 20 रुपीज भरना है, अभी कुछ एक्सेस है ही नहीं किसी का। थिएटर वाला क्या बोलेगा, 50 रुपया तो लास्ट टिकट में यूज हो चुका है, अभी आपको भी 200 रुपया भरना पड़ेगा पिक्चर देखना है तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल में किसी का कोई एक्सेस नहीं है, तो सबके लिए जो भी बंदे हैं सबको पूरा 20 रुपया भरना पड़ेगा। तो एवरीवन हैज टू पे फुल 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। सो इधर नोट वोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट कॉल इन अरियर, directly you can calculate call in arrear. So what will be the amounts, can you tell me? Was answering this Mokshit or Yashvi? 150 into 23. 150 into 20, that will be how much? 3000. And bank में कितना आएगा? 3,97,000. 3,97,000. This is first call received and CIA adjusted. तो ये बात समझ आई? पहले मैंने अलॉटमेंट के वक्त कॉल इन अरियर का नोट क्यों बनाया और फर्स्ट कॉल के वक्त क्यों नहीं बनाया? फर्स्ट कॉल के वक्त मैंने डायरेक्ट कॉल इन अरियर कैलकुलेट कर लिया और अलॉटमेंट के वक्त मैंने एक्सेस एडजस्ट करके किया। ये कंसेप्ट समझ आया पहले आपको? अलॉटमेंट के वक्त क्यों मैंने वो नोट बनाया? क्योंकि एक्सेस था। फर्स्ट कॉल के वक्त क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सब एक्सेस खत्म हो चुका है अलॉटमेंट, ये सबको 20 रुपया भरना। Did you understand? So ये हो गया आपका कॉल इन अरियर का पार्ट। रिसीव्ड फर्स्ट कॉल, सेकंड मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी खत्म हो गया, एक ही कॉल था। उसके बाद पढ़ो क्या हो रहा है। The company forfeited the shares and reissued them at 90 rupees per share. Jainam, can you tell me the entry for forfeiture now? सोच के बोलना। Equity share capital, share premium to call in arrears to share forfeiture. Very good. Equity share capital account debit, share premium account debit। पहले तो मैं बोलता हूं प्रीमियम डेबिट कर ही दो, बाद में देखेंगे अमाउंट आएगा कि नहीं, नहीं आए तो नील कर देना, बट पहले प्रीमियम डेबिट कर ही डालो। कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, अभी कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होगा जैनम? 150 into 100. Very good. Called up value. Capital is always multiplied by the called up value in the time of forfeiture. Called up मतलब जितना मंगवाया मतलब उतने से क्रेडिट हो चुका है, अभी उतने से डेबिट करोगे तो कैंसिल होगा। तो 150 into 100 will give you 15,000. प्रीमियम का क्या रूल है याद है forfeiture में? Once received should not be debited, not received should be debited. तो अपनी अंतरात्मा से पूछो, मिस्टर ए ने क्या भरा है? सिर्फ एप्लीकेशन भरा और भाग गया भाई। सो डिड ही पे द अलॉटमेंट मनी? नो। डिड ही पे द फर्स्ट कॉल मनी? नो। अलॉटमेंट भी नहीं भरा, फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा। बात समझ आ रही है कुछ? नाउ टेल मी गाइस, if he has not paid the allotment, has he paid the premium?
नो, क्योंकि प्रीमियम अपना किसके साथ चिपका हुआ था, अलॉटमेंट मनी में था। तो अगर अलॉटमेंट नहीं भरा तो प्रीमियम भी नहीं भरा ऑब्वियसली। तो व्हाट रूल यू विल अप्लाई, वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड। करूं कि नहीं करूं, बोलो, शुड आई डेबिट प्रीमियम, यस और नो? यस, वी नीड टू डेबिट, क्योंकि फेक क्रेडिट पड़ा हुआ है ऊपर, उसको डेबिट करके नलिफाई करना पड़ेगा। तो 150 इंटू 20 प्रीमियम डेबिट करना है 3000 से। इज दिस क्लियर? To call in area, what is your call in area? Add up 3000 plus 6000. Total call in area are 9000, and automatically you'll have forfeited amount over here, that is 9000. Share forfeiture will be 9000. Okay, share forfeiture would be 9000. I'm showing you the verification here only. How did you get this 9000? ये 9000 क्या है? ये हड़पा हुआ पैसा है हमारा, मिस्टर ए ने जो भरा था। What did Mr. A pay? Think and tell me. Only application. Only application. Okay. So if I do like this, उसके 150 shares थे, उस पे उसने खाली application भरा, तो I'm getting only 7500. But it's not tallying with 9000. सर उसने ज्यादा दिया होगा ना 180 shares प्रोरेटा पे के बाद उसको। Exactly. इसीलिए अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था, जब भी अगर कोई बंदा एप्लीकेशन भर के भाग जाता है और आपको ये 4 फीचर अमाउंट में इंडिविजुअल 4 फीचर ढूंढना है ना, ये 4 फीचर में हम लोग ढूंढते हैं ना इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ 4 फीचर, तब आप उसके अप्लाइड शेयर ले लो तो काम इजी हो जाएगा, शॉर्टकट है वो। अगर कोई बंदे ने खाली एप्लीकेशन भरा है ना तो उसके अप्लाइड शेयर लो। उसने कितने अप्लाई किए थे? 180। तो 180 इंटू 50 डायरेक्टली आ जाएगा 9000। उसने 7500 नहीं भरा है, उसने 9000 भरा है। 7500 ऑफ एप्लीकेशन एंड 1500 ऑफ अलॉटमेंट। भाई ने 9000 रुपया भरा था, अलॉटमेंट का भी 1500 रुपया ना उसने शुरुआत में ही दे दिया था, जैसे हमने पिक्चर के टिकट का 50 रुपया शुरुआत में दे दिया, वैसे उसने 7500 नहीं 9000 भरा हुआ है। सो 9000 रुपीज इधर सेट हो गया, 9000 भरा है टुवर्ड्स कैपिटल, दैट इज 4 फीचर। गॉट इट? easily you will be able to verify this amount. Got it? शेयर 4 फीचर में लॉजिक दिमाग में फिट कर लो। शेयर 4 फीचर में कौन सा पैसा है? शेयर 4 फीचर में which money do we write? The money received towards capital. The money received towards capital. सुन रहे हो ध्यान से? The money received towards capital. उस भाई ने कैपिटल की तरफ 9000 रुपया भरा है। कैसा 9000? 7500 of application and 1500 of allotment. Like that he has paid 7500. Okay? प्रीमियम नहीं भरा है उसने, प्रीमियम हमने वैसे भी कैंसिल कर दिया डेबिट देके। अब जाते हैं री इश्यू पे। साची, कैन यू टेल मी द एंट्री फॉर री इश्यू? अच्छा, हाउ मेनी शेयर्स विल यू री इश्यू? 180 शेयर्स और 150 शेयर्स? साची 150. Very good, 150 shares, absolutely right. And what will be the entry for reissue? Bank debit share forfeiture Yes, to equity share capital. very good. Bank account debit, share forfeiture debit to equity share capital account. Why you will debit share forfeiture? Because there is a gain or loss on reissue? Loss on reissue. Can you tell me the amounts now? What amount you will write in bank? Bank will be 150 into 90. Correct. 150 into 90, 13500. Capital में कितना आएगा? Capital will be 15,000. Very good. 150 into 100. Called up. Always remember called up value. ठीक है? 4 फीचर में भी called up, reissue में भी called up. सबने जितना भरा इसको भी इतना called up दिखाना पड़ेगा, 15000। नए शेयर होल्डर का कैपिटल 15000 हो गया, पैसे उसने 13500 दिए है, कंपनी अपने जेब से डाल रही है 10 रुपए, तो 1500 रुपया हो गया लॉस। दैट इज 4 फीचर। अब एक लास्ट एंट्री, वो एक्स्ट्रा एंट्री जो हमेशा करनी है। साहिल, कैन यू टेल मी दिस लास्ट एंट्री? वेरी गुड। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट to capital reserve account. How much?
4,500. 4,500. Sorry, 7,500. हाँ 150 फोरफिट किया और रीइश्यू भी 150 किया। देखो ना यहाँ पे जितना कैंसिल किया है सबका सब रीइश्यू कर दिया है, तो पूरा प्रॉफिट माइनस पूरा लॉस। अभी कुछ पैसा बचा के रखना है क्या फोरफीचर में? नहीं, कोई पैसा रखने की जरूरत नहीं है। जितने फोरफिट जितने कैंसिल किए थे ना सबके सब रीइश्यू हो चुके हैं। तो एंटायर प्रॉफिट क्रेडिट माइनस डेबिट यू कैन ट्रांसफर। तो प्रॉफिट कितना था? तो 9,000 माइनस लॉस हो गया 1,500। 9,000 में से 1,500 लॉस हो गया तो बचा कितना? 7,500। 7,500 you transfer from temporary to permanent reserve. टेम्पररी टू परमानेंट रिजर्व ट्रांसफर कर दो, काम खत्म। इज दिस क्लियर? सर वो एक बार नोट वर्किंग नोट दिखाओ ना। देख लो बैठा दिमाग में सबके? एक ही चीज अलग थी सब में, अलग तो एक्चुअली पहले भी किया था हमने ये। एक्सेस ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस ऑन अलॉटमेंट के वक्त अगर कॉल इन अरियर हो तो नोट बना के करना, डायरेक्टली मत करते। ठीक है, हो गया सर। फोर फीचर रीइश्यू ट्रांसफर क्लियर है। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने 150 शेयर 150 शेयर्स कैंसिल किए थे और 150 रीइश्यू किए थे, बराबर है? ये प्रॉब्लम। उसके जगह पे अगर 150 कैंसिल करके मैं खाली 75 रीइश्यू करता, 75 शेयर से रीइश्यू करता 90 रुपीज में, तो मेरा लॉस कितना होता है यहाँ पे? रीइश्यू लॉस वुड बी 750 हो जा, आधा हो जाता। और फिर ट्रांसफर कितना करते आप शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व? 8250। रॉन्ग सर उस पे भी आधा हो जाता है। सर खाली 75 शेयर्स का ही लोगे। हाँ, ये जो 9,000 है ना, ये 150 शेयर का प्रॉफिट है। तो अब हमने रीइश्यू खाली 75 किया ना, 75 अभी भी बाकी है, तो प्रॉफिट भी कितने का लो? 75 का। दैट विल बी 4,500। 4,500 माइनस 750, 3,750. 3,750 is what you would have transferred from share forfeiture to capital. ओके, हम लोग करते थे ना खाली पी का शेयर रीइश्यू किया, खाली क्यू का शेयर रीइश्यू किया, तो क्या? दैट इज द सेम थिंग ओवर हियर। Now next one, I want you all to try question 16 on your own. वहां तक कर लो, क्वेश्चन 60, दैट इज आल्सो प्रो रेटा। सर इसमें कैश बुक के बारे में भी लिखा था क्वेश्चन। कैश बुक के बारे में नहीं, वो कैश बुक नहीं, डोंट हैव दैट कैश बुक स्टफ। नॉर्मल जर्नल देयर इन सीए फाउंडेशन। सर सर आपने 75 शेयर्स वाला बोला वापस। अरे ये मैंने 150 कैंसिल किया ना यहाँ पे और 150 रीइश्यू किया ना, ये वैसे उसके जगह पे 150 कैंसिल करके खाली 75 रीइश्यू कर रहा है यहाँ पे। तो ये रीइश्यू एंट्री खाली 75 का आता ना, तो बैंक में आता 75 इंटू 90, फोर फीचर में 75 इंटू 10 और कैपिटल में 75 इंटू 100, तो लॉस 750 हो जाता ना। अभी कितना ट्रांसफर करेगा तू शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व? कैन यू डू 9,000 माइनस 750 डायरेक्टली? वुड दैट बी राइट? नो, बिकॉज तुमने कैंसल 150 शेयर्स किया है और रीइश्यू खाली 75 किया। तो कैन यू कंपेयर प्रॉफिट ऑफ 150 शेयर्स विद लॉस ऑफ 75 शेयर्स? नो। तो प्रॉफिट भी कितने का लेने का? 75 शेयर्स का लेने का। तो ये 9,000 150 शेयर का है ना, 75 का कितना रहेगा? 4,500। 4,500 minus 7, that will be 3,750. That much will transfer. आधा प्रॉफिट माइनस आधा लॉस। अगर पूरा रीइश्यू किया तो पूरा प्रॉफिट माइनस पूरा लॉस।
1/4 रेशियो क्या, तो 1/4 प्रॉफिट माइनस 1/4 वाला लॉस जो भी है तुम्हारे पास। 16th सम 1660, उसमें पॉइंट ए तक करो सब लोग सॉल्व, पॉइंट ए टॉम लिमिटेड, समझा? सिक्सटींथ सम सर मला कौन उसका वीडियो ऑफ था, तुम करो सम। आप उसको लेने वाले हो कि नहीं, मैं उसको बोल दूं? बैठने दो उसको थोड़ी देर, करो सम।
Did you all get the calls in arrears of Mr. P? Allotment का calls in arrears of Mr. P. डायरेक्टली कर सकते हैं कि नोट बनाना पड़ेगा? बोलो, नोट बनाना पड़ेगा। ट्राई करो नोट। लास्ट सम में हमने किया था। क्यों नोट बनाना पड़ेगा? बात समझ आई? Why you need to make the note? Because excess है, pro rata है. Make the note. Calculate the CIA. Come on. 9,000 आ रहा है। I don't know. हाँ सर 9,000 कितना आएगा? 8,400 I think applied आएगा उसका। 2,400 पे ₹2.5 मतलब 48 6,000 रुपये एक्स्ट्रा है और 6,000 into 2.5 24 नहीं 15 में से 6 गया। हाँ 9,000 is allotment का CI perfect 9,000 आना चाहिए 15 minus 6 try it come on make that note of excess calls and arrears खुद से try करो सेवन इज टू 5 का रेशियो था ओके अप्लाइड टू अलॉटेड में 7:5 का रेशियो था इन योर अप्लाइड टू अलॉटेड एंड उसमें इसका अलॉटेड है 6,000 अप्लाई कितना किया होगा तो आई थिंक 8,400 application received will be 8,400 into 2.5 that will be 8 to the 16 20 21,000 whereas required application इससे होगा 6,000 into 2.5 15,000 इसका 6,000 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है कंपनी में दिस इज एक्सेस ऑन एप्लीकेशन लेस अलॉटमेंट रिक्वायर्ड कितना है इससे तो 6,000 शेयर्स पे 2.5 इज 15,000 ये 15 वो भरेगा नहीं क्योंकि 6 पड़ा हुआ था he has to pay only 9,000 which is not paid that 9,000 rupees is his call in arrears 9,000 rupees is his call in arrears okay bolo any doubt in this part anyone all of you got this allotment का CIA 9,000 rupees बढ़ो आगे करते जाओ
ये फर्स्ट कॉल के वक्त भी क्या सेम नोट बनानी है अपने को एक्सेस वगैरह की फॉर कॉल इन अर्लियर are we supposed to make the same note? No need. Now no one is having any excess, right? Directly you can multiply and calculate the call in arrears. 6 of P and 4,000 of Q, so total 10,000 shares pay 2.5. 25,000 are your call in arrears. Okay. Same goes for second call. उधर भी कोई नोट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है. Okay. यहाँ तक आपका सेकंड कॉल हो गया. फिर मैंने बोला पॉइंट ए वाला करना है आपको. तो नेक्स्ट एंट्री वुड बी 4 फीचर. टेल मी गाइस, वाज देयर एनी प्रीमियम इन द प्रॉब्लम? Was there any premium in the problem? No, sir. No premium. So your 4 feature entry should be equity share capital account debit to call in arrear account to share 4 feature account. Okay. Equity share capital to call in arrear to share 4 feature. Capital called up value, you have to multiply your forfeiting 10,000 shares into 10 rupees. That will be 1 lakh. Call in arrear, यहाँ से total ले लेना आप लोग. 25 plus 9, 59. And 41 is 4 feature. ये 41 का ब्रेकअप भी इधर ही कैलकुलेट कर लेने का. जो 41,000 आपको मिला है 4 फीचर शेयर 4 फीचर. ओके. ये 41,000 का भी ब्रेकअप ढूंढ लो. P का कितना है, Q का कितना है. What did P pay? Tell me. 8,400 shares एप्लीकेशन मनी भर के अगर कोई भाग जाता है और उसका 4 फीचर अमाउंट ढूंढना है तो क्या करना है शॉर्टकट के लिए? अप्लाइड शेयर्स ले लो सीधा. अलॉटेड भी ले सकते हो, थोड़ा लंबा मेथड है. 6,000 पे एप्लीकेशन भरा, फिर एक्सेस भी ऐड करो. इससे अच्छा डायरेक्टली अप्लाइड ही ले लो, क्योंकि भाई अप्लाइड भर वो एप्लीकेशन भर के ही भाग गया, आगे कुछ भरा ही नहीं है. तो उसने 8,400 शेयर्स पे 2.5 भरा है, मतलब 21,000 भरा है. ये पी ने भरा है टुवर्ड्स कैपिटल. प्रीमियम नहीं है, खाली कैपिटल का भरा, भाग गया. प्रीमियम है ही नहीं समझ. क्यू ने क्या भरा? What did Q pay? Application and allotment. Q paid application and allotment, right? So should I take his applied shares or should I take his allotted shares? Allotted. इसमें applied लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अगर application में ज्यादा भरा है तो allotment में कम भरा है. That is the mean. Okay. I'll take his allotted shares. That is what 4,000 shares into 5. That makes it 20,000. 21 plus 20 should give you 41,000. Tally होना चाहिए. ठीक है? Or if you got that, that's it. Then let's go to the reissue part. A वाला पार्ट है. A वाले में क्या दिया हुआ है पढ़ो.
All forfeited shares were reissued at 9. All forfeited shares were reissued for 9. All manje kitne? How many shares are we reissuing? 10,000. 10,000 shares. Manan, can you tell me the entry for these 10,000 shares ka reissue? Bank share for Yes. bank share forfeiture to equity share capital. Bank account debit. Why share forfeiture account debit? Because there is a loss or gain. Loss. लॉस हो गया है यहाँ पे रेशियो पे लॉस हो गया है तो बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच विल राइट इन बैंक हाउ मच विल राइट इन बैंक मनन 10,000. No. 10,000 into 1. all the shares were reissued at 9 rupees 9. 10,000 into 9 90,000 capital में called up value 10,000 into 10 that is 1 lakh and share forfeiture में आएगा 10,000 into 1 that is 10,000 okay then immediately whenever we reissue we need to pass this extra entry. What is that extra entry? Transfer entry. Jash Doshi, can you tell me this transfer entry? Share forfeiture to capital reserve. Share forfeiture to capital reserve. How much you will transfer? 31,000. Very good. How come 31? क्या किया तुमने? 41 minus 10. 41 का profit minus 10 का loss. यहाँ पे directly कर सकते हो. Because we have reissued all the shares. Correct, Sakshi? We have reissued all the shares. So 41 minus 10 will give you 31,000. This is share forfeiture transferred to capital reserve. मजा तभी आएगा जब सब शेयर रीइश्यू नहीं करते हो जो आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर बी में. ये तो था पॉइंट नंबर ए. अभी पॉइंट नंबर ए में यहां से था पॉइंट नंबर ए ऑल शेयर्स वे रीइश्यू. ठीक है. अब जब आप बी पॉइंट देख रहे हो ना, बी पॉइंट केस बी देख रहे हो ना, तो ये भूल जाओ. ऊपर वाला तक का पोर्शन का एंट्री सेम है एंड उसके बाद बी केस आ रहा है. मतलब ऑल द 3 केसेस आर इंडिपेंडेंट. दैट पार्ट यू गॉट. ऑल 3 केसेस आर इंडिपेंडेंट. पहले केस में सबका सब शेयर्स रीइश्यू किया है. सेकंड केस में खाली क्या दिया है? पीज शेयर्स वे रीइश्यूड एंड थर्ड केस में ओनली क्यूज शेयर्स वे रीइश्यूड. ठीक है. तो पहला केस में खाली ऑल द शेयर्स देन पी देन क्यू. अच्छा वो पी में करेक्शन करना, ओनली पी शेयर्स वे रीइश्यूड बाय फॉर 6 नहीं है, 9 रुपीज है. ओनली पीज शेयर्स वे रीइश्यूड फॉर 9 रुपीज, नॉट 6. 9 इट इज 9 है. तो आपका ऊपर वाला सम सेम है. ऐसा सोचो कि आपने 1 to 9 एंट्रीज किया हुआ है, फॉरफिट सब कर लिया है, कैंसिल सब कर लिया है. अब ओनली पीज शेयर आर रीइश्यूड एट ₹9. 6 नहीं है वो 9 है. प्लीज जस्ट करेक्ट इट. 9 रुपीज. ठीक है. वृष्टि, कैन यू टेल मी द एंट्री? हेलो वृष्टि. Yes, sir. One minute. Yeah. Sir, only P is reissued, right? Bank forfeiture to capital account. बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर. बैंक में how many shares of P were there? 4,000.
6000, 6 9s are 54. Okay, कैपिटल में आएगा कॉल्ड अप वैल्यू 6000 into 10, that is 60,000, and forfeiture में आएगा 6000 into 1, that is 6000. Okay, now when we transfer, ये चिपकू एंट्री साथ में ही रहेगा, शेयर forfeiture to capital reserve. How much will you transfer? Think. Will you transfer full 31,000? Yeah, will you transfer 41 minus 6, 35,000? How much will you transfer? Think. 21 minus 6. How much will you transfer from share forfeiture to capital reserve? All of you, I want you all to think. Come on. 21,000 minus 6. 21 minus 6. Why 21 minus 6? किसका शेयर रीइश्यू कर रहे हो आप अभी? P का. तो काय को सबका प्रॉफिट लेना है? How can you compare सबका प्रॉफिट minus P का लॉस? You are reissuing only P shares. Compare only P का प्रॉफिट with P का लॉस. तो P का प्रॉफिट कितना है? ऊपर देखो, ये रहा, हमने यहाँ पे किया है कैलकुलेट. सॉरी, नीचे ये रहा. P का प्रॉफिट दिख रहा है? P का हड़पा हुआ पैसा 21,000 माइनस P का लॉस. P का लॉस ये रहा, एंट्री में ऊपर ही किया है अभी 6,000. 21 minus 6, 15,000 is what you transfer. 15,000 is what you transfer. Okay, this is 21 minus 6. P is the shares forfeited. Okay, तो P का ही प्रॉफिट माइनस P का लॉस. क्यों मैंने ऐसा किया अभी भी? क्योंकि Q का शेयर्स बाकी है ना. Q shares are left to be reissued. उसमें भी लगेगा प्रॉफिट. I cannot transfer full amount. I'll transfer only P's profit minus P's loss. Come on, try Q वाला केस. केस सी खुद से ट्राई करो. केस सी खुद से ट्राई करो सब लोग. उसमें भी 1 to 9 एंट्री सेम है. फिर ये भूल जाने का. ओके, उसमें 8,000 है. सॉरी, 8,000 है आंसर. इसका क्यों क्यू का शेयर forfeiture to capital reserve you are saying? यस सर. 4,000 into 3 12, 20 minus 12 बराबर 8,000. सर एक डाउट था. हाँ सर अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं शेयर फॉरफीचर? उसके बदले सर अगर हम लोग जैसे हम लोग P का है, अभी Q का है, तो Q का हम लोग पहले उसका 4,000 शेयर्स है, तो 4,000 इंटू उसका दोनों कॉल इन अरियर्स हम लोग करते हैं, और फिर हम लोग वो माइनस करके ढूंढते उसका शेयर फॉरफीचर. तो चलेगा? या वो भी चलेगा, बट प्रीमियम के वक्त वो कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो ध्यान रखना है. क्योंकि शेयर फॉरफीचर में खाली कैपिटल का पैसा आता है, प्रीमियम का नहीं. नहीं सर, वापस बोलो ना. तो बोल रहा है कि टोटल में से कॉल इन अरियर माइनस कर दिया, तो जो बचा वो फॉरफीचर है ना. हाँ हाँ. तो वो अभी के सम में चलेगा, क्योंकि 10 रुपए का ही शेयर है ना, 10 रुपए में इश्यू किया है, पार पे इश्यू है. बट अगर तुम्हारा 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में रीइश्यू 12 रुपए में इश्यू होता था, ओरिजिनल इश्यू प्रीमियम पे होता 12 रुपए में. हाँ, उसमें से उसने 4 रुपया नहीं भरा और 8 रुपया भरा है. तो 4 रुपया नहीं भरा है वो तो कॉल इन अरियर है, लेकिन 8 रुपया जो भरा है उसमें 2 रुपया प्रीमियम है, उसको मत लेना, 6 रुपया ही लेना. हाँ सर, ठीक है. सर वो P Q का रेशियो वाला बताओ ना. इंटू 2.5 किया और 21,000 आया. वो अभी वीडियो ऑन रखने का नेक्स्ट टाइम, ठीक है? नहीं तो अभी वीडियो देखना, बाद में समझना. चलो थर्ड केस Q का ट्राई करो खुद से. Q का केस ट्राई करो. ओनली Q शेयर्स आर रीइश्यूड. एड ₹8. क्या एंट्री करोगे या दोषी? यस सर. बोलो. बैंक अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट. सर 7 रुपीज है. 7 है क्या? अच्छा 7. हाँ बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल. बैंक टू कैपिटल, पैसा आया, कैपिटल कलेक्ट किया है. हाउ मेनी शेयर्स ऑफ Q आर देयर?
4,000. 4,000. So 4,000 into what? 7 rupees in 7. bank. Yeah. That is 28. 28,000. How much in capital? 4,000 into 10. 10. That is 40,000. 40. And forfeiture में 4,000 into 3. 12,000 का loss. 12,000. Okay. Now that extra entry. Share forfeiture to capital reserve. Share forfeiture to capital reserve. बताओ मुझे. Share forfeiture to capital reserve. How much will you transfer over here? Vanshi, can you tell me how much will you transfer from share forfeiture to capital reserve? $8,000. Very good. कैसे किया? Will you transfer सबका profit minus सबका loss? No. No. किसका shares reissue किया हमने? सिर्फ Q का. Yes. तो Q का ही profit लो. Q का profit मतलब Q का हड़पा हुआ पैसा. ये रहा. दिख रहा है? 41 में से Q का खाली 20 है. तो Q का profit minus Q का loss. Q का profit minus Q का loss. 12,000. Okay, so 20 minus 12, that much only you will transfer. 8,000. 8,000 is what you transfer. Is this clear? ये कट मत कर देना तुम लोग, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था. हाँ बोलो. प्रीमियम होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं शेयर फॉरफीचर? इसमें अगर प्रीमियम होता तो शेयर फॉरफीचर तो इधर ही करके रखा है ना. ये क्या है? प्रीमियम होता तो सर प्रीमियम होता तो भी फॉरफीचर अमाउंट ऐसे ही होता, इतना ही होता. प्रीमियम को इग्नोर ही करना है ना शेयर फॉरफीचर. शेयर फॉरफीचर में खाली कैपिटल का पैसा आता है. और सर वो हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं जिसमें हम लोग को जो पे नहीं किया है वो वैल्यू ढूंढना है? तो फॉरफीचर एंट्री, ये ट्रांसफर एंट्री. 3 एंट्री होता है ना. पहले फॉरफीट करते हो, फिर रीइश्यू करते हो, फिर ट्रांसफर करते हो. वो फॉरफीचर एंट्री में रूल है वो. Once received should not be debited, not received should be debited. फिर रीइश्यू किया और फिर जब ट्रांसफर करने का बारी आया ना, तब ये करते हो ना कैलकुलेट फॉर प्रॉफिट माइनस लॉस. ये फॉरफीचर के प्रॉफिट में यू हैव टू टेक ओनली कैपिटल की तरफ आया हुआ पैसा, नॉट टुवर्ड्स प्रीमियम. Sure. Share forfeiture मतलब the amount received minus premium ना? Amount received minus premium. Yes. If he has paid premium, then he has not paid premium, then simply amount received. बराबर. Now, come to the next problem. Let's see if you have understood this concept properly. Question 10 देखो. Question 10. All of you take question number 10. Question number 10, all of you. Okay. देखो क्या दिया हुआ है. A holds 2,000 shares of 10 each on which he has paid 2 on application. B holds 4,000 shares of 10 each on which he has paid 2 per share on application, 3 per share on allotment. C holds 3,000 shares of 10 each and has paid 2 on application, 3 on allotment and 3 on first call. They all failed to pay their arrears on the second and final call, and the directors therefore forfeited their shares. The shares are reissued subsequently for 12 per share. Journalize the following transaction to calculate forfeiture and reissue. खाली forfeiture और reissue का ही एंट्री करना है. मतलब टोटल 3 एंट्री आएगा. समझ ये समझ में आ रहा है? How many entries? 3 entries. What are those 3 entries? Forfeiture, reissue and transfer. A, B and C. पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन देख के, what is that share issued at? Is the issue at par, premium or discount? पढ़ के बताओ. Is the issue at par, premium or discount? पढ़ो. At par. At par है. 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू किया है. प्रीमियम का कोई मेंशन नहीं है. ठीक है. अभी ऐसा सम आ सकता है फॉर 8 marks. Okay, they will ask you only forfeiture and reissue entry.
पूरा सम नहीं पूछेगा, खाली फोर फीचर एंड री इश्यू एंट्री। तो पहले तो 10 रुपए का शेयर है, एट पार इश्यू है। कितने पार्ट्स हैं इसके? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? Till second call. Till second call. And looking at the sum, you can also tell me the breakup. Please read the sum properly. You will get it. 2332. 2332. एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया है, सेकंड कॉल पे 2 रुपया। ये इंफॉर्मेशन समझ आया? क्वेश्चन पढ़ के कुछ क्लिक हुआ? 3 डिफॉल्टर है, क्या क्या दिया हुआ है? A holding 2000 shares of 10 each on which he paid 2 on application, वो खाली 2 रुपया भर के भाग गया। B holds 4000 shares of 10 each, उसने application allotment भरा फिर भाग गया। And C holding 3000 shares on which he paid application, allotment and first call और फिर भाग गया। सेकंड कॉल किसी ने भी नहीं भरा, डायरेक्टर ने फोरफिट किया। तो मुझे एक बात बताओ, पहले फोर फीचर एंट्री करनी है कि री इश्यू एंट्री करनी है? फोर फीचर। फोर फीचर, तीन ही एंट्रीज करना है सब में, फोर फीचर एंट्री होगा। आपको फॉर्मेट पता है फोर फीचर एंट्री का सबको? व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ फोर फीचर एंट्री? व्हाट इज द एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रीमियम है क्या सम में? नहीं सर। तो प्रीमियम का रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टू कॉल इन अरियर, टू शेयर फोर फीचर, ठीक है। पहले एंट्री लिख देनी है सबको। अब मुझे बताओ आप कितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हो टोटली? टोटल करो कितने शेयर्स हैं डिफॉल्टर वाले? ए, बी एंड सी तीन डिफॉल्टर है ना। तो ए का 2000 शेयर है प्लस 9000। बी का कितना है? 4 है और सी का 3 है, तो टोटल 9000 शेयर आप कैंसिल करोगे। अब कैपिटल में कितना लिखोगे बताओ? व्हेन आर वी कैंसिलिंग द शेयर्स? आफ्टर द सेकेंड कॉल। तो पूरा कॉल्ड अप वैल्यू, तो कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको? Into 10. Into 10. So 9000 into 10, that makes it 90,000 rupees. पूरा सम नहीं कर रहा हूं मैं, खाली फोर फीचर एंट्री कर रहा हूं डायरेक्टली। ये दिमाग आपका क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर पता चल जाएगा। आपको ये एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको देख के यू विल बी एबल टू डू ओरली ऑल दीज 3 एंट्री। सी जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग। कैपिटल कैंसिल कर रहे हो विद द कॉल्ड अप वैल्यू, सो 10 से मल्टीप्लाई होगा। कॉल इन अरियर में क्या लिखते हो बताओ? जो पैसा वो लोग ने भरा कि जो पैसा वो लोग ने नहीं भरा? नहीं भरा। जो पैसा वो लोगों ने नहीं भरा है। तो मुझे एक बात बताओ, पी ने क्या नहीं भरा? Allotment first call second call. पी ने क्या नहीं भरा? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। पी के कितने शेयर थे? 2000 शेयर थे। उसने अलॉटमेंट नहीं भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा, सेकंड कॉल नहीं भरा, तो कितना रुपया नहीं भरा? कितना पैसा मिलना बाकी था उससे? 3 + 3 6 + 2 8 हो गया, हुआ कि नहीं? Yes. तो 2 × 8 16,000 बराबर है। क्यू ने क्या नहीं भरा? फर्स्ट कॉल, 4000 into 5. फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, तो क्या नहीं भरा यहाँ पे? एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा, 3 रुपया और 2 रुपया, 5 रुपया नहीं भरा। तो 4000 into 5 20,000। अच्छा, आर ने क्या नहीं भरा? आर ने क्या नहीं भरा? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल नहीं भरा, तो आर ने 2 रुपया नहीं भरा ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 3000 शेयर्स। तो कितना होता है? 6000 रुपया होता है। टोटल करो इसका, 16 + 20 36 + 6 42,000। टोटल CIA मिल गया आपको 42,000, लिख दो उसको यहाँ पे 42। ऑटोमेटिकली फोर फीचर आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा यहाँ पे। कितना आएगा फोर फीचर आपका? 48। इसको भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, इसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर फोर फीचर। जो पैसा हड़प लिया है हमने, ये किसका हड़पा हुआ पैसा है? खाली पी का, खाली ABC है, सॉरी ABC, ABC।
तो खाली ए का हड़पा हुआ पैसा है, बी का हड़पा हुआ पैसा है कि सी का हड़पा हुआ पैसा है कि तीनों का हड़पा हुआ पैसा है? वो 4 फीचर में तीनों का। तीनों का हड़पा हुआ पैसा है। ए ने क्या भरा था बताओ? टुवर्ड्स कैपिटल एप्लीकेशन। अभी इधर तो प्रीमियम है ही नहीं, तो लफड़ा ही नहीं है, कैपिटल की तरफ लेना आपको पैसा। बात समझ आ रही है? 4 फीचर में वैसे भी कैपिटल की तरफ आया हुआ प्रॉफिट होता है, तो 2000 इंटू 2 कितना होगा? 4000। आर यू ऑल गेटिंग दिस? क्यू ने क्या भरा था? एप्लीकेशन allotment। मतलब 2 और 3 5 रुपया भरा होगा, तो 20,000। और आर ने क्या भरा था? सॉरी, सी ने क्या भरा था? Application allotment allotment first first call। call। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 3000 शेयर्स। 3000 कितना होता है? 8 2 + 3 24,000। 5 + 3 8 होता है, तो दैट कम्स टू 24,000। ऐड करो तीनों को, वेरीफाई करो हो रहा है क्या? 44 + 4 48,000। आराम से बैठ जाएगा आपको, क्लियर कट बैठेगा एंट्री, फिट होगा ही, ऑटोमेटिकली फिट होगा। ये चीज मेरे को लिख के करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं क्वेश्चन पढ़ के ही देख सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था P has paid only application, वही 4 फीचर हो गया उसका। whatever he has not paid वो कॉल इन अरियर हो गया उसका। टोटल किया तो कैपिटल मिल जाएगा मेरे को। सेम गोज फॉर Q, सेम गोज फॉर R, सेम बेसिक ABC तीनों का लॉजिक सेम है। अब क्या? अब 4 फीचर के बाद क्या किया कंपनी ने, बताओ मुझे? रीइश्यू किया है। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर रीइश्यू? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या प्राइस पे रीइश्यू किया? पढ़ो जरा, दिमाग लगाओ वहां पे। 12 मतलब इज इट एट लॉस और एट प्रॉफिट? प्रॉफिट म्हणजे प्रीमियम की 4 फीचर किसको क्रेडिट करना है? ऊपर का मला प्रीमियम। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? शेयर 4 फीचर की प्रीमियम। शेयर प्रीमियम। हाउ मेनी शेयर्स आर वी रीइश्यूइंग? 9,000। ऑल द शेयर्स, 9,000 शेयर्स। तो बैंक में कितना लिखोगे? अभी कितना पैसा आ रहा है? 9,000 इंटू 108,000। 12 1,08,000। कैपिटल में कितना आएगा? तो 9,000 इंटू 90,000। दैट इज 90,000। और प्रीमियम में कितना आएगा? 9,000 इंटू 2 18,000। 18। और तीसरा एंट्री, एक्स्ट्रा वाला एंट्री, वो तो करना ही है जब भी रीइश्यू करते हो। शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व। मुझे बताओ जरा सोच के, हाउ मच विल यू ट्रांसफर फ्रॉम शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व? 48 ही होगा ऑब्वियसली। ये 48 प्लस 18 करना है? विल यू डू 48 प्लस 18? नो। शेयर 4 फीचर सेपरेट है, टेम्पररी रिजर्व है, उसको डालना है परमानेंट कैपिटल रिजर्व में। ओके, प्रीमियम अलग रिजर्व है, उसको हाथ मत लगाना। प्रीमियम अलग है, शेयर 4 फीचर अलग है। अगर शेयर 4 फीचर में लॉस होता तो हम माइनस करते हैं रीइश्यू का लॉस। इधर कोई रीइश्यू में लॉस नहीं था, तो पूरा का पूरा 48 चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व 48,000। इज दिस क्लियर? You got that? हेलो, बताओ समझा कि नहीं? बताओ समझा कि नहीं? चलो, I want you all to try question 4 on your own. Come on. उसमें एक ही एंट्री करनी है 4 फीचर की, जस्ट वन एंट्री, नॉट इवन रीइश्यू। जस्ट रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू इंटरप्रेट एंड गेट द आंसर। क्वेश्चन 4 कंसेप्ट बैठ जाएगा ना तो बहुत चिंदी है, देख के ही सीधा आंसर आ जाएगा, आर्यभट्टा बन जाओगे सब लोग। देखे बिना बता सकते हो कितना आएगा 4 फीचर में? क्वेश्चन मतलब सॉल्व किए बिना, ओरली। क्वेश्चन 4, रीड द डेटा एंड ट्राई टू टेल मी। शेयर 4 फीचर में 4 फीचर का एंट्री करना है, वो समझ आया ना? एक ही एंट्री करना है। 4 फीचर एंट्री में हाउ मच अमाउंट यू विल राइट इन शेयर 4 फीचर एंड हाउ मच अमाउंट यू विल राइट इन कॉल इन अरियर। ओरली देख के बताओ वहां पे, सॉल्व किए बिना।
Sir, 30,000 into 6 for a feature or 1 30,000 lakh 80,000 for feature. and and 1,20,000 calls in arrears. देखो नम्र दोषी ने आंसर भी कर लिया. वेरी गुड. ऐसे ओरली देख के ही जवाब आ जाएगा तुमको. ट्राई करो, चलो सॉल्व करो. खाली 4 फीचर एंट्री करना है. कम ऑन. आंसर बोला तो छाप मत देना. खुद का दिमाग चलना चाहिए. क्यों आया और कैसे आया. सर एग्जाम में ऐसा सब नहीं पूछेंगे ना. एग्जाम में ये सब बोला ना मैंने. पार्ट सम भी है तुमको 8 मार्क के लिए. अभी जो मैंने ये वाला करवाया ना तुमको 10th सम आ सकता है. खाली सिंगल एंट्री नहीं आएगा ऑब्वियसली 8 मार्क के. मतलब सर मतलब पूरे शेयर्स में से यही आएगा ना. ये और फिर और एक सम नहीं आएगा ना. ऐसा नहीं होगा ना. नहीं नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं ना वो वैरायटी में से कोई भी एक सम. जस्ट वन सम. आंसर क्या है? आंसर क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आएगा बताओ. 3 लाख. 3 लाख. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विल बी 3 लाख. फिर कॉल इन अरियर. टू कॉल इन अरियर 1 कितना? लाख 80. 120. 120. 120, कॉल इन sir. अरियर 120. टू कॉल इन अरियर 120. टू शेयर फॉर फीचर 180. 180. क्यों ऐसा? कॉल इन अरियर में क्या आता है? जो नहीं भरा. भाई ने क्या नहीं भरा? वो 4 रुपया नहीं भरा. और 4 फीचर में जो हड़प लिया 6 रुपया जो भरा था वो हड़प लिया. तो कितना हड़पा? 6 रुपया. टू ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉट. गॉट इट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 lakhs. To call in arrear 1,20,000. To share for feature 1,80,000. Is that clear? Is that clear? बोलो. समझा? अब क्वेश्चन 6 का खुद से करो. क्वेश्चन 6 इज विथ प्रीमियम. उसमें भी खाली 4 फीचर एंट्री पास करनी है. क्वेश्चन 6 खुद से करो. क्वेश्चन 6 खुद से करो. उसमें भी सिर्फ 4 फीचर एंट्री करनी है. क्वेश्चन रीड करना ध्यान से. सम नंबर 6. खाली 4 फीचर एंट्री. प्रीमियम भी है. प्रीमियम भी है. 4 फीचर एंट्री में प्रीमियम का क्या हिस्सा होता है बताया था आपको. दिमाग लगाओ. महक का हो गया. महक रामबिया. No sir, I'm reading the question. करो. पिछले क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बाउंसर गया किसी का तो बताओ. प्लीज टेल मी. इफ एनीवन डिड नॉट अंडरस्टैंड द प्रीवियस वन आई विल एक्सप्लेन अगेन. प्रीवियस वाला समझा ना? तो ये वाला आएगा. खाली 4 फीचर करना है आपको.
सर 2 लाख आएगा शेयर फॉर फ्यूचर। सी एंट्री तो ये है, सबको पता है, फुल्ली कॉल्ड अप है, तो कैपिटल विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फुल फेस वैल्यू विच इज 100 रुपीज। तो 5000 शेयर्स इंटू 100, कैपिटल में कितना आएगा? तो 5 लाख रुपया, बराबर है। प्रीमियम में क्या आएगा? रूल बताओ, रूल फॉर प्रीमियम। वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड, अग्री? तो प्रीमियम डेबिट करना है कि नहीं करना है? करना है। करना है, क्योंकि भाइयों ने प्रीमियम भरा ही नहीं है ना, खाली एप्लीकेशन भर के भाग गए हैं। तो 5000 इंटू कितना था प्रीमियम? 20 रुपया, तो 1 लाख रुपया आएगा। टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर, अभी क्या भरा है वो लोग ने? खाली एप्लीकेशन भरा है, और हमारा ब्रेकअप क्या था? 100 + 20 का ब्रेकअप था। एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, 50 रुपीज ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम एंड 50 ऑन फाइनल कॉल, बराबर है। तो ये लोग ने खाली 20 रुपया ही भरा है एप्लीकेशन का, तो वो हो गया 4 फीचर, 5000 इंटू 20 टूवर्ड्स कैपिटल 1 लाख। और जो नहीं भरा वो हो गया कॉल इन अरियर, तो कितना हो गया कॉल इन अरियर? 5 लाख रुपया इनका कॉल इन अरियर हो गया। वो भी यहाँ से ढूंढ सकते हो। क्या नहीं भरा? ये नहीं भरा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं भरा। कॉल इन अरियर में कोई भेदभाव नहीं है, कॉल इन अरियर मतलब सब कचरा, जो नहीं भरा सब डाल दो उधर। सर उसमें हम लोग प्रीमियम का भी गिनेंगे? सब कुछ, प्रीमियम का भी गिनने का। कॉल इन अरियर में बोला था कुछ भेदभाव नहीं करने का। कॉल इन अरियर मतलब जो नहीं भरा वो। 4 फीचर में खाली वो पैसा आता है दैट इज रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। कॉल इन अरियर में तो सब कचरा, जो नहीं भरा सब इंक्लूड करने का। तो 50 + 50 100, तो 100 इंटू 5000 दैट विल बी 5 लाख। दिस शुड बी योर एंट्री। बोल, ये समझ आया कि स्टिल एनी डाउट? एनीवन? टेल टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल। बैठा दिमाग में? सॉरी, बोलो, एनी डाउट्स? लास्ट सम नंबर 15 इससे करो फाइंड आउट। आज इकोनॉमिक्स नहीं है ना तुम्हारा रोहन सर? डोंट हैव इको राइट? हाँ, लेकिन सर एक्सटेंड मत करो। अरे नहीं भाई, 11 बजे तक थोड़ी है, बस ये लास्ट सम। सर किसने बोला इको नहीं है? हाँ सर, मेरा बात हुआ था कल। हाँ सर, रोहन सर को हॉस्पिटल जाना है। मैसेज नहीं आया अभी तक। सर मंडे छुट्टी है ना? वो आज एसपी लेक्चर लेते हैं। हाँ सर, बोलो। मंडे छुट्टी है ना? अरे मंडे दशहरा नहीं है, संडे दशहरा है। तो सर दे दो ना, उसमें क्या हुआ है? 2 दिन दशहरा मनाएंगे। कितना रावण जलाएगा तू? हाँ सर, अरे सर दो ना, एक दिन तो दो। सर कौन सा सम करना है? 15 खुद से करना और एकदम परफेक्टली आना चाहिए अभी, विदाउट एनी मिस्टेक। ये आ गया तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, बोर्ड्स के लिए निश्चिंत हो जाओ आप। हाँ सर, फिर उसके बाद एक भी लेक्चर नहीं होगा ना शेयर्स का? मैंने ऐसा नहीं बोला सर, आपने ऐसा ही समझने को बोला। दिस इज इंडियन लॉ, नॉट नेसेसरी एवरीथिंग टोल्ड मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन द सेम वे। ये आएगा तुमको लॉस, ये
तुम तो नहीं कर रही हो ना सीए ध्वनि? What are you doing? What are you planning to do, ध्वनि? Not planned only. What यार, बैन Sir, what एकदम time है? चालू हो गई सीए लेके और तुम अभी भी टाइम टाइम कर रही हो। सर दोनों अलग है ना, हम प्लान करेंगे आराम से। करो करो आराम से करो, कोई हाई नहीं है। एक बार प्लान करो अच्छे से, फिर एंटर करो, कोई भी फील्ड चूज करना हो, प्लान इट प्रॉपरली एंड देन एंटर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या भोपाड़ा किया देखा? हल्के में लेते हो ऑब्जेक्टिव्स को, या खतरनाक स्कोर्स आया है। 1 मार्क मीन्स 1000 स्टूडेंट्स नीचे सीधा बोर्ड्स में। एक ऑब्जेक्ट, एक लाइन, एक वर्ड भारी पड़ गया। No one has scored full. And that's why I told you, बोर्ड पेपर भी मैंने तुमको दिखाया, स्टूडेंट हैव लॉस्ट मार्क्स ओनली इन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर नहीं करोगे तो फुल मार्क्स इज डिस्टेंट ड्रीम। परफेक्ट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के पीछे का एक एक ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। थोड़ा बहुत वो रॉन्ग आंसर कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है उसको मारो गोली, और जो जेन्युइन है करेक्ट है वो परफेक्टली आना चाहिए। कांट टेक रिस्क ऑन ऑब्जेक्टिव। सब कुछ आता रहेगा फिर भी 80 में से 75, 5000 स्टूडेंट पीछे, सब अच्छा बीएमएस बीएफएम का सीट गुल, जस्ट बिकॉज ऑफ 5 वर्ड्स ऑब्जेक्टिव। Don't leave a loose end on objective. यशवी पटेल, हाँ सर। हमारा फाइबर है ना अभी घर पे? सर मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ। शाबाश। ऋषा को समझ रहा है? ऋषा इज हाफ asleep only in my lecture. सर मैं नीचे देख रही हूँ। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 95 के नीचे आया मतलब कच्चा है, समझ लो। 95 प्लस इज फाइन, मार्जिनल एरर इज फाइन, बट 95 के नीचे मतलब ऑब्जेक्टिव किया नहीं है बराबर से। वर्क ऑन दैट। 6 प्रीलिम्स आई विल बी टेकिंग, 6 प्रीलिम्स, 6 प्रीलिम्स रहेगा 80 मार्क्स का इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब। कड़क रीत से तभी विथ ऑब्जेक्टिव पूरा आने वाला है, 80 मार्क का बोर्ड पेपर, बोर्ड पैटर्न एवरीथिंग। ऑब्जेक्टिव इजी में जरा भी मत गिनना, हल्के में जरा भी मत गिनना। Think it as if it is a separate question only, separate chapter. Do it sincerely. सर उसमें एक ऑड मैन आउट में क्वेश्चन था कि स्टैम्प, ड्राफ्ट, एक्सेप्टेंस और अमाउंट, तो उसमें ड्राफ्ट क्यों आता है? Draft is not a part of pro forma ना, draft is the pro forma itself, unsigned pro forma. जब तक ड्रॉई का साइन नहीं होता तब तक that bill of exchange is called as a draft. बाकी 3 were the inside part of bill of exchange, parts of bill of exchange. Stamp, date of drawing, date of acceptance, the parts of BOE.
सबसे कॉमन मिस्टेक तो ये एक तो था ही सबका, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इन डिसॉल्यूशन, ट्रू और फॉल्स, अग्री डिसएग्री। ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सर वो हमने आपको कॉल किया था। तू फिर भी रॉन्ग किया महान। नहीं सर, नहीं, मेरा बरोबर था वो, मेरा वो रॉन्ग नहीं है। तेरा रॉन्ग है वो, मैं देखा। नहीं है सर, मैंने फॉल्स ही लिखा है। अरे वो डिसएग्री में था, सेकंड वन देख, तेरा अग्री डिसएग्री। सर राइट है, मेरा भी राइट है। हाँ सर, मेरा भी राइट है। पक्का? हाँ पक्का सर। सर आप फ्री बैठो ना सर, आप चेक करो। वापस चेक करो ना तुम्हारा पेपर, दो दो तीन तीन बार। यह है तो ठीक है, तुम लोग पूछा था मेरे को आधे घंटे पहले एग्जाम का वो डाउट पूछा था। और बाद में एग्जाम कैंसिल कर दिया था। हाँ वो दिन कैंसिल हो गया। सर तभी आप बोलते नहीं हो कि आपका घर का वाईफाई नहीं। हाँ वही। अरे मेरा घर का वाईफाई 6 घंटे से बंद था उस दिन, वो कभी भी चालू हो सकता था, बोला चालू हो गया तो आपको फिर बोला करवा ना देता। सर, हम लोग फालतू में पढ़ते नहीं पहले से। हाँ सर, डब्ल्यू नेट का प्रॉब्लम था, मेरे उधर भी था वो दिन, इसीलिए। चलो थोड़ा पढ़ लिया तो अच्छा ही हुआ ना, उस बहाने तो 4 मार्क्स ज्यादा आएगा। सी ऑल एसेट्स आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ओके। कैश बैंक नहीं होता है, अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं होता है, पार्टनर का लोन डायरेक्टली कैपिटल में चला जाता है, वो नहीं होता है, लोन गिवन टू पार्टनर। करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, वो भी नहीं होता है। Not all the assets are transferred to realization. Okay? Those assets which can be sold or realized are only transferred. जम रहा है सम? सर हो गया तो जाऊं? ये रुको बाबा, चेक कौन करेगा? ऋतिक को कितना है ऑब्जेक्टिव? 96। सर मुझे हाँ 97। 97। गुड। हाईएस्ट इज आई थिंक मीति, राइट? 98.5। इधर गया मीति का एक मार्क। सर इंस्टॉलेशन लिख दिया था मैंने, इंस्टॉलमेंट। वो तो आधा गया रहेगा उधर। और फिर लास्ट में कुछ तो रॉन्ग है, लास्ट क्वेश्चन में वो जो था ना उसमें। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, वो जो लास्ट क्या था फिर, मतलब वो बॉक्स कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशन। हाँ उसमें डेफिशिएंसी, हाँ ऐड करना था, तुमने लेस कर दिया ऐसा। वो इंस्टॉलेशन नहीं, हाँ इंस्टॉलमेंट है, काफी लोगों का मिस्टेक मिला वन सेंटेंस। रिटायरिंग पार्टनर का दो पेमेंट मेथड है ना, लमसम मेथड एंड इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलेशन नहीं है, इंस्टॉलमेंट।
સાક્ષી દોશી દાંડિયા રમવામાં બીજી થઈ ગઈ છે. ઓબ્જેક્ટિવમાં દાંડિયા સુધરમ નગાડા બધું વાગી ગયું. लोएस्ट शॉक हो गया. मैं बोला साक्षी एटलीस्ट 90s में तो आएगी. मेरे को 2 बार चेक करना पड़ा. बोला क्या किया है साक्षी. सर मैंने खुद ने 2 बार कि क्या कर दिया है. पेपर लिख के चेक किया होता तो शायद मिस्टेक भी मिलता. कितना 57 की 67 कितना है? 67. बैंड बजेगा बैंड. रिया खंदोर है स्कोर्ड वेल है. रिया खंदोर को कितना है? रिया को 81. हाँ नहीं रिया का भी गया 81. वेरी पुअर. वर्क हार्ड यार, वर्क हार्ड. ऑब्जेक्टिव्स Heath has done well. Heath has done 98 na. Yash has done well. Tatvesh has done well. मोक्षित का मजाक में काफी उड़ गया. क्या 96.5 फुल आ सकता था. कितना गया? 3.5. कैसा गया? आधा था आपने वो कैंसलेशन में काटा है. मैंने नहीं काटा, तू कैंसलेशन किया है. और हर टाइम का हो गया सर. हर टाइम का हो गया तो करते ही रहने का ना. मतलब वैसा हो जाता है अभी कैलकुलेशन में. लेकिन हर बार कैसा होता है? अलर्ट रहने का ना. मेडिटेशन कर थोड़ा. और किधर कटा अभी सर देखना पड़ेगा. इतना सारा क्वेश्चन. हाँ एक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने काटा. प्रोफॉर्मा में वो 2 लिखना भूल गया था उसमें. उसमें 1 काट दिया पूरा. सर टेक्स्ट बुक में 2 नहीं है. हाँ सर तू लिखने गया उधर. मैंने टेक्स्ट बुक में से ही देखा था. हाँ सर इसीलिए गया. तू लिखने का है लेकिन याद रखो वो है ना सर मॉडरेशन. नहीं दिया है. आधे में 2 दिया है, आधे में नहीं दिया है. वो मॉडरेशन लेवल का एकदम ऊपर का हेडिंग है. बिल ऑफ एक्सचेंज 2 बाय एकदम फुल मार्क्स आता रहेगा ना तो इधर काटता है वो लोग कैंसलेशन. वो पहले से ही तुम लोग दिमाग में फिट करके रखो. अगर आप काटते हो तो मतलब कैसे भी काटते हो ना सर. तुम लोग परफेक्ट बनो. दैट इज अ टारगेट. लेकिन सर आपने बोला था अगर फुल आता है तो इतना मिस्टेक करता है. अभी फुल तो आया नहीं तो भी आपने इसमें काटा. ऑब्जेक्टिव है ना. ऑब्जेक्टिव में मतलब खतरनाक ही चेकिंग रहता है. ऑब्जेक्टिव में क्या सर और वो प्रोफॉर्मा में आपने ऊपर क्वेश्चन मार्क किया है वो बिल ऑफ एक्सचेंज हेडिंग लिखने का है वहाँ पे. बाकी अभी देखना पड़ेगा. 2 मार्क की मतलब देखा है अभी याद नहीं है. देखने का और याद रखना. अभी मिस्टेक्स सब लोग don't repeat the mistakes. Go through your mistake. Otherwise it doesn't make sense. फुल लाके करना क्या है? 99 नहीं लाने का है ना. तो 1 मार्क का मिस्टेक सामने से करके आने वाले तो पता चलेगा और 2-3 काटने के. तो 1 मार्क का करके आएगा वो 5 काट के देगा तेरे को. तो सर 99 में वो लोग इतना नहीं देखते जितना 100 में देखेंगे ना. बार घुमा दे देंगे और मार्क्स ढूंढते रहेंगे काटने के लिए. तो उससे अच्छा तो हम लोग सामने से 1 मार्क का काट के आए. शाबाश. ऐसा सोचोगे ना तो पक्का 95 के नीचे. चलो सर जाए. चेक. फर्स्ट वन. John Limited issued 10,000 equity shares of 10 each payable in 4 parts. So the issue is at par 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Company received application for 12,000 shares. Manje oversubscribed. Money on excess application was used for allotment purpose. Manje pro rata. P was allotted 200 shares, did not pay allotment. Q was allotted 300 shares, did not pay first call. All the shares were forfeited, reissued for 10. उसके बाद वापस अलग से दिया. P shares were reissued for 8. So सबसे पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000 into 2.5 30,000 rupees. Is that clear? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000 मिला सबको. सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन will be 30,000 to equity share capital will be 25,000 to equity share allotment would be 5,000.
Did you get it? एप्लीकेशन में 30 टू कैपिटल में 25 टू अलॉटमेंट में 5 एक्सेस मनी. देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 नो प्रीमियम. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? Then bank calls in arrears to equity share allotment. Bank calls in arrears to equity share allotment. इसमें equity share allotment में 20,000 ही आएगा. Equity share allotment में 20,000 ही आएगा. समझ आ रहा है? Equity share allotment में it will be only 20,000. Calls in arrears का नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेस था. नोट देख लो सब लोग. नोट में क्या लिखोगे? पहले तो अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो इज 12:10, दैट इज 6:5. और P का अलॉटेड शेयर्स था 200, तो उसका अप्लाइड कितना होगा? 240. तो उसका एप्लीकेशन रिसीव्ड स्क्रीन पे देखो. P का एप्लीकेशन रिसीव्ड वुड बी 240 into 2.5. ये कितना आता है? 600 लेस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड. उससे एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कितना था? 200 into 2.5, दैट इज 500. तो भाई का 100 रुपया एक्सेस था लेस अलॉटमेंट रिक्वायर्ड. कितना होगा अलॉटमेंट रिक्वायर्ड? 200 into 2.5, दैट इज 500. तो 400 रुपया उसको भरना था, वो उसने नहीं भरा, तो 400 रुपया उसका CIA आएगा. अलॉटमेंट के वक्त 400 ही CIA, बैंक में आएगा 19,600. सो बैंक अकाउंट डेबिट 19,600, कॉल इन अर्लियर डेबिट 400 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट विल बी 20,000 rupees. Is that clear? Is this clear? सबको समझा? Anyone any doubt? Next entry, first call, equity share first call to equity share capital, that will be 25,000. वापस कॉल इन अरियर आएगा. बैंक कॉल इन अरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 25,000 चाहिए. अभी किसी का कोई एक्सेस नहीं है. P और Q दोनों जब डिफॉल्ट कर रहे हैं, और कितना शेयर्स हो गया दोनों का मिला के? 200, 300, 500 शेयर्स. 500 into 2.5 is 1250. तो बैंक में आएगा 23,750. So bank account debit 23,750, call in arrear debit 1250 to equity share first call 25,000. Got that? Then again second call, so equity share second call to equity share capital 25,000. Again call in arrear, bank call in arrear to equity share second call, same 25,000, 1250 and 23,750. Bank में 23,750, call in arrear 1250, equity share second and final call 25,000. Is that clear? Hello. फिर आता है 4 फीचर एंट्री. तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर 4 फीचर अकाउंट. कैपिटल में कितना शेयर्स कैंसिल कर रहे हो? 500. कब कर रहे हो? एट द एंड. पूरा कॉल्ड अप कैपिटल, तो 500 into 10 would be 5,000, राइट? कॉल शेयर 4 फीचर में क्या आएगा? जो पैसा भरा, कॉल इन अरियर में जो नहीं भरा, कॉल इन अरियर ऊपर से टोटल मिल जाएगा आपको 1250 plus 1250 plus 400. That will be 2,900 I think. And 4 फीचर में आना चाहिए 2,100. ये 4 फीचर का आप ब्रेकअप भी देख सकते हो. 2,100 का P का कितना है और Q का कितना है. P ने क्या भरा था? तो खाली एप्लीकेशन. P ने खाली एप्लीकेशन भरा था, तो I will take his applied shares. 240 into 2.5, that makes it 600 rupees. और Q ने क्या भरा था? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो उसका अलॉटेड शेयर्स ले लो. 300 into 5, that is 1,500 रुपया. 1,500 और 600 दोनों मिलाओगे तो 2,100. ओके. इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 टू कॉल इन अरियर 2,900 टू शेयर 4 फीचर 2,100. फिर आता है री इश्यू का एंट्री. पहला केस में दिया है कि ऑल द शेयर्स वर री इश्यूड एट 10 रुपीज पर शेयर. तो री इश्यू का एंट्री होगा बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. Bank to equity share capital, you are reissuing 500 shares at 10 rupees each. So bank to capital 5,000, and then transfer entry will be share 4 feature to capital reserve, that will be 2,100. 2,100. Share 4 feature के credit में 2,100 है, debit में nil है, तो 2,100 is what you transfer. फिर केस B आता है individual reissue. उधर दिया only P shares were reissued. Only P's share. Only P मतलब कितना शेयर था P का? बोलो. Only P मतलब P का कितना शेयर था? I think that 200 into 8. यहाँ पे आएगा 1,600.
लॉस हो गया 200 इंटू 2 400 और कैपिटल में आएगा 200 इंटू 10 दैट इज 2000 क्योंकि एंड में किया है फुली कॉल्ड अप है. इमीडिएटली यू पास दिस ट्रांसफर एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व. कितना करोगे अभी खाली पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस 600 माइनस 400 200 रुपए 200 rupees you will transfer from share for feature to capital. Is this clear? Any doubts anyone? होमवर्क मिल जाएगा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से. इसको रिवाइज करना. आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर जो किया है ना, लास्ट प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके हर एक सम परफेक्टली आने चाहिए. ये तो वापस देखो, नहीं समझ में आया तो पूछो. Go through the video again if you want. Let me know if you have any doubts. Okay? होमवर्क मिल जाएगा कल शाम तक सबमिट, सॉरी संडे शाम तक सबमिट कर देना. डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव टाटा बाय बाय. सर या वो ऑब्जेक्टिव में डेफिशिएंसी के जगह पे कैपिटल डेफिशिएंसी राइट है. इट इज नॉट रॉन्ग. डेफिशिएंसी राइट है, बट ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछा जाए ना पूरा लिखो कैपिटल डेफिशिएंसी. सर हम लोग नोटरी चार्जेस के जगह मैं नोटिंग चार्जेस के जगह पे नोटरी चार्जेस लिख दिया था. नोटिंग ऑब्जेक्टिव में बी अलर्ट. या सर ये सब में हम लोग 240 शेयर्स पे क्यों लगे सर?